So today's topic is tooth development in the dental histology. Today we will be discussing about the tooth development histology. What happens in the oral cavity is that primitive oral cavity is also known as stomodium. Stomodium is the oral cavity, okay, and it is lined by the stratified squamous epithelium, and this stratified squamous epithelium is also known as oral ectoderm or primitive oral epithelium. Okay, it is ectoderm in nature. This terminology will be helpful while we will be learning about the different stages of tooth development like bird stage, cap stage, bell stage. Okay. Now this ectoderm contact the endoderm of the foregut. Suppose this is pharyngeal arches. Okay, this is ectoderm, and here it is the endoderm of the foregut. This endoderm contacts with the ectoderm with the help of the buccopharyngeal membrane, and during the 27th day of the gestation period, this membrane gets ruptured and the primitive oral cavity make the connection with the foregut. It is for future foregut and this is oral cavity. So when it happens during the 27th day of the gestation, membrane rupture and primitive oral cavity establish a connection with the foregut. Now what happened? This hole is lined by the ectoderm. Below this ectoderm there is a layer that is ectomesenchyme in nature. Suppose this is ectoderm, and below this ectoderm there is a layer of the cell that is ectomesenchyme in nature. So the connective tissue cell underlying the oral ectoderm, this oral ectoderm here and here, oral ectoderm are the neural crest or the ectomesenchyme in origin. These two terminology will be helpful when we have to identify that enamel develop from ectoderm or ectomesenchyme, and dentine develop from which cells, pulp develop from which cell. We will discuss in detail in further slides. Okay. Now at the 6th week old embryo, what happened? That is certain basal layer of oral ectoderm. Suppose this, when we see from upside down, it is just like horseshoe shape. ओके, हॉर्सशू शेप में क्या होता है, कुछ 10 एरिया होते हैं, 5 इधर 5 इधर, दिस 10 एरियाज. यहाँ पे अगर अपन इसको बाई साइड देंगे तो कुछ सेल एक्स्ट्रा में ही डिवाइड होते हैं. ये एक्स्ट्रा में डिवाइड होके जो एक लेयर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? डेंटल लेमाइना एंड वेस्टिब्युलर लेमाइना. ओके. So, at the 6th week old embryo, certain area of basal cell of oral ectoderm proliferate more rapidly than do the cell of the adjacent area. Adjacent area के compare में ये cell थोड़ा ज़्यादा divide होंगे, and this form a primitive epithelial layer. Primitive epithelial layer consists of this both dental lamina and vestibular lamina. If a short note is asked on primitive epithelial layer, then it includes both dental lamina and vestibular lamina. This is horseshoe shape, that is known as the future dental arches. At the 7th week of the embryo, primitive epithelial band, as we have already discussed, is divided into dental lamina and vestibular lamina. Dental lamina is lingual process or the inner process. Suppose here we see, okay, these two processes are there. This is outer process, this is inner process. Inner process means lingual one, which is situated lingual and it is situated in buccal. Buccal one is known as the vestibular process and the lingual one is known as dental lamina. Okay. डेंटल लैमाइना, वेस्टिबुलर जो प्रोसेस होता है वो तो अपने वेस्टिब्यूल्स बनाने के लिए काम आते हैं, और जो डेंटल लैमाइना होता है इसके से 3 चीज़ें बनती हैं. खुद डेंटल लैमाइना से आगे जाके जब इसका शेप चेंज होगा, बर्ड शेप में होगा, कैप शेप में होगा, बेल शेप में होगा, तो ये तो टूथ बनाता है डेसिडुअस टूथ. ओके. इसी के ही डेसिडुअस टीथ का लास्ट मोलर बन गया, उसके बाद में उसी के ही एक तो डेसिडुअस टूथ ठीक है,
डिस्टल एक्सटेंशन से अगर अपन देखेंगे डेंटल लमाइना की, तो परमानेंट मोलर बनते हैं, बिकॉज परमानेंट मोलर आर नॉट दी सक्सीडिनस टीथ. सक्सीडिनस टीथ आर द टीथ विच इरप्ट, आर द परमानेंट टीथ विच इरप्ट इन प्लेस ऑफ द डेसिडुअस टीथ. जो डेसिडुअस टीथ के प्लेस में इरप्ट होते हैं परमानेंट टीथ, उनको सक्सीडिनस टीथ कहते हैं, और वो इसके लिंगुअल, जैसे कि ये डेंटल लमाइना है, इसका और लिंगुअल यहाँ से हो जाएगा. तो ये जो मेन डेंटल लमाइना है उससे तो डेसिडुअस टीथ, जो लिंगुअल एक्सटेंशन है उससे परमानेंट टीथ, और इसी के ही और डिस्टल एक्सटेंशन से परमानेंट मोलर. These all are the fates of the dental lamina. Okay, take this screenshot. These all are the fates of the dental lamina. Okay, take this screenshot. तो डेंटल लैमाइना में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि एक इसका लिंगुअल एक्सटेंशन होता है, जैसे डेंटल लैमाइना है, ठीक है. इसका एक ऐसे लिंगुअल एक्सटेंशन रहता है, उस लिंगुअल एक्सटेंशन को कहते हैं सक्सीडिनल लैमाइना. ये क्या करता है कि डेवलप फ्रॉम द 5th month ऑफ इन यूट्रो, जो कि डेवलप करता है परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर एंड एक्टिव टिल 10 month ऑफ द एज पोस्ट बर्थ. ओके, विच थ्रू विच सेकेंड प्रीमोलर डेवलप. तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हेन द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द परमानेंट टूथ डेवलपमेंट अकर इन यूट्रो, देन आंसर वुड बी 5th month. जब 5वां महीना इन यूट्रो में रहता है तो ये सक्सीडिनल लैमाइना एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो बर्ड स्टेज बनाता है किसके लिए, परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर के लिए. सिमिलरली और भी डेंटल लैमाइना के सक्सीडिनल लैमाइना रहते हैं, तो लास्ट वाला जो सेकंड प्रीमोलर बनाता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड मोलर तो डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ डेंटल लैमाइना से ही डेवलप होंगे. टोटल एक्टिविटी ऑफ डेंटल लैमाइना, ये जो डेंटल लैमाइना होता है ये टिल 5 years ऑफ द एज तक, 5 साल तक एक्टिव रहता है. मतलब सबसे पहले यहाँ के सेल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट होकर डेंटल लैमाइना बनाना शुरू किया, तब से लेके उन्होंने इनेमल ऑर्गन बनाया और धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाते हैं. तो वो पूरा टाइम पीरियड कितना रहता है, 5 years का. उसके बाद में डेंटल लैमाइना सपोज यहाँ से सेंट्रल इंसाइजर का चला गया, यहाँ का कैनाइन लेटरल का चला गया, कैनाइन का चला गया, ऐसे करते करते 3rd मोलर का जो डेंटल लैमाइना होता है वो फिर भी एक्टिव रहता है. सो द रेमिनेंट ऑफ डेंटल लैमाइना में स्टिल बी एक्टिव इन द 3rd मोलर रीजन आफ्टर इट डिसअपियर एल्सवेयर. अगर सपोज यहाँ से डेंटल लैमाइना डिसअपियर हो गया, बट कुछ रेमिनेंट्स यहाँ पे डेंटल लैमाइना के कभी कभी रह जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेल रेस्ट ऑफ सीरीज. Cell rest of series are the remnant of dental lamina which persist as the epithelial fur or the island in the jaw as well as the gingiva. इसलिए जब अपन ओरल पैथोलॉजी में मोस्ट काफ़ी सारे सिस्ट पढ़ते हैं जो जिंजाइवा में प्रेजेंट होती है, वो किससे बनती है, सेल रेस्ट ऑफ सीरे और रेमिनेंट ऑफ डेंटल लैमाइना से बनती है. जैसे कि डेंटिडियल सिस्ट वगैरह उसके अंदर क्लासिफिकेशंस में आते हैं. Vestibular lamina we have already discussed that it is a labial and buccal to the dental lamina and it follows the lip furrow bend. At a certain point 10 in maxilla or 10 in mandible. Suppose अपन ऊपर से देख रहे हैं तो ये maxilla को, तो यहाँ पे 10 points होंगे और सेम मैंडिबल में भी 10 points होते हैं. तो एक्टोडर्मल सेल मल्टीप्लाई स्टिल मोर रैपिडली, जैसे कि ये एक्टोडर्मल सेल तेजी से मल्टीप्लाई होकर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, लेटर नॉब दैट ग्रो इनटू द अंडरलाइन मेसेंकाइम. यहाँ पे सारा क्या है, एक्टोमेसेंकाइमल सेल है. ओके, तो एक्टोमेसेंकाइमल सेल में ये एक्टोडर्मल सेल जो ग्रो हुआ है नॉब लाइक, जो आगे जाके क्या कहलाता है, इनेमल ऑर्गन. इस इनेमल ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं प्रोलिफरेट इंक्रीज इन साइज, बट यहाँ से एक्टोमेसेंकाइम इस पे प्रेशर डालना चालू करता है, तो यहाँ से ये अंदर की तरफ जाना शुरू करता है और इसका शेप बर्ड से कैप फॉर्म हो जाता है. सो एज द सेल प्रोलिफरेट इनेमल ऑर्गन इंक्रीज इन साइज, सिंक डीपर इनटू द एक्टोमेसेंकाइम ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ एंड चेंजेस शेप, और कैप स्टेज से फिर वो वेल स्टेज के अंदर चला जाता है. Next we will learn about the bud stage.
प्रीवियस स्लाइड में अपने क्या पढ़ा था कि जो ओरल एक्टोडर्म था उससे एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था, दैट वाज नोन आल्सो नोन एज इन फर्दर स्टेजेस इनेमल ऑर्गन। अब इनेमल ऑर्गन की मेनली मॉर्फोलॉजिकली देखें तो 3 स्टेजेस होती है। हिस्टोलॉजिकली भी अपन उनकी स्टेजेस पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट स्टेज बर्ड होती है, देन कैप, देन बेल, बेल के बाद एडवांस बेल स्टेज भी आती है। बर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, जो इनेमल ऑर्गन इज इन द फॉर्म ऑफ अ काइंड ऑफ द बर्ड। इसके अंदर जो पेरिफेरल होते हैं सेल्स, दे आर लो कॉलमनर सेल। कॉलमनर सेल मतलब लो ऐसे कॉलमनर सेल्स होते हैं पेरिफेरल के अंदर, एंड सेंट्रली आर पॉलीगोनल सेल, दिस टाइप ऑफ पॉलीगोनल सेल। सेंटर के अंदर पॉलीगोनल सेल एंड पेरिफेरी के अंदर लो कॉलमनर सेल होते हैं। सिंपल। इसके चारों तरफ एक्टोमेसेनकाइम होता है, तो इसके चारों तरफ जो एक्टोमेसेनकाइम होता है वो थोड़ा कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होके जो एक एरिया इसके चारों तरफ बनाते हैं उसको कहते हैं डेंटल सेल पेपिला। और जो पूरा इसके और आउटर साइड में जो कंडेंस हो जाता है उनको क्या कहते हैं, डेंटल सेल। तो बर्ड स्टेज के अंदर 4 पॉइंट वी हैव टू रिमेम्बर। फर्स्ट, इट इज पेरिफेरली लोकेटेड cells are low columnar cell, centrally located are polygonal cell. Area of ectomesenchyme surrounding the tooth bud condense to form the dental papilla. In further slides, we will learn which all structures develop from the dental papilla and what all develop from the dental cell. And the condensation of ectomesenchyme surrounds the tooth bud and dental papilla, both is dental cell। ठीक है। बर्ड स्टेज के बाद जैसे जैसे यहाँ पे माइटोसिस बढ़ता जाता है, एक्टोमेसेनकाइम के सेल्स और ज़्यादा डिवाइड होते हैं, वो यहाँ प्रेशर लगाता है। प्रेशर लगाने से इनेमल ऑर्गन का शेप थोड़ा सा कैप शेप के फॉर्म में हो जाता है। यहाँ पे इट इज़ अगेन डेंटल पैपिला एंड यहाँ पे चारों तरफ इट इज़ डेंटल सेल। बट इनेमल ऑर्गन के सेल्स में क्या चेंजेस आता है? First point we have done, that shallow invagination on the deep surface of the bird. We will see peripheral cell is cuboidal that cover the convexity. This is convexity of the enamel organ. यहाँ पे जो सेल होते हैं वो क्या कहते हैं, आउटर इनेमल एपिथेलियम, एंड दे आर क्यूबॉइडल। लो कॉलमनर की जगह ओनली क्यूबॉइडल होते हैं, ऐसे क्यूब फॉर्म में होता है। ओके, and this is known as outer enamel epithelium. Okay, and the cell of the concavity, this is concavity. यहाँ पे जो सेल होते हैं उनको इनर इनेमल एपिथेलियम कहते हैं, एंड दे आर दी कॉलमनर सेल, लॉन्ग कॉलमनर सेल। तो जो पहले लो कॉलमनर थे, कुछ आउटर और इनर इनेमल एपिथेलियम नहीं थे, अब कैप स्टेज के अंदर वो डिफ्रेंशिएट हो गए। जो बाहर की कॉन्वेक्सिटी की तरफ रहते हैं उनको आउटर इनेमल एपिथेलियम कहते हैं, वो क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, और जो अंदर कॉन्केविटी की तरफ होते हैं दिस इज नोन एज इनर इनेमल एपिथेलियम। आगे फर्दर स्लाइड्स में अपन देखेंगे जो इनेमल मेन बनता है वो इस इनर इनेमल एपिथेलियल सेल से ही बनता है। तो ये तो अपन ने पेरिफेरल सेल के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में सेंट्रल के पॉलीगोनल सेल का क्या होगा? सेंटर के जो पॉलीगोनल सेल होते हैं इसके अंदर एक ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकैन प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकैन प्रेजेंट होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाता है, तो वाटर अंदर की तरफ आता है। वाटर अंदर की तरफ आने से इनका शेप पॉलीगोनल की जगह स्टार शेप का हो जाता है, एक्सपांड एंड फॉर्म दी स्टार शेप। Although they are connected to each other, but they expand, and hence these cells are known as stellate reticulum cell. These star-shaped cells are known as stellate reticulum cell. So the central polygonal cell began to separate due to water being drawn into the enamel organ. Why? From the surrounding dental papilla as the result of osmotic forces exerted by glycosaminoglycan contained in the ground substance. क्योंकि पॉलीगोनल सेल्स के ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकान होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होने से डेंटल पैपिला से इसके अंदर वाटर आ जाता है।
अब क्या, जो आउटर इनेमल एपिथेलियम है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द डेंटल सेक बाय दिस, जैसे कि ये आउटर इनेमल एपिथेलियम है, डेंटल सेक पूरा कवर करता है, डेंटल पेपिला इतना ही है, ठीक है। आउटर इनेमल एपिथेलियम डेंटल सेक से और इनर इनेमल एपिथेलियम डेंटल पेपिला से कैसे सेपरेट होती, एक बहुत ही थिन डेलिकेट बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। सो आउटर इनेमल एपिथेलियम सेपरेट फ्रॉम डेंटल सेक एंड इनर इनेमल एपिथेलियम सेपरेट फ्रॉम डेंटल पेपिला बाय अ डेलिकेट बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जब कैप स्टेज होता है इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दैट इज इनेमल नॉट, ओके, इनेमल नॉट, इनेमल नेवल, इनेमल कॉर्ड्स, ये तीन के बारे में वी विल लर्न इन नेक्स्ट स्लाइड, ओके। बर्ड स्टेज के बाद जो कैप स्टेज वी हैव सीन, उसके अंदर कुछ ट्रांजिटरी या टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। वो मेनली 4 कैटेगरी होती है। फर्स्ट इज इनेमल नॉट, सेकेंड इज इनेमल कॉर्ड, थर्ड इज इनेमल सैफरन एंड फोर्थ इज इनेमल नेवल। तो ये क्या होता है, जैसे कि अपन ने देखा कि ये कैप स्टेज है, ठीक है, ये आउटर इनेमल एपिथेलियम थी इसके अंदर, और ये इनर इनेमल एपिथेलियम थी, बीच के अंदर इसके स्टेलेट रेटिकुलम सेल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे डेंटल पेपिला था और यहाँ पे डेंटल सेक था। इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे सेल्स जो कि होते हैं कुछ ज़्यादा डिवाइड करने लग जाते हैं और इकट्ठे ज़्यादा हो जाते हैं। सेल इन द सेंटर ऑफ इनेमल ऑर्गन, इनेमल ऑर्गन के यहाँ पे सेंटर पे आर डेंसली पैक्ड एंड फॉर्म द इनेमल नॉट, और वो क्या बना देते हैं, इनेमल नॉट बना देते हैं। ये इनेमल नॉट जो कि होता है, इसका जो वर्टिकल एक्सटेंशन होता है उसको क्या कहते हैं, इनेमल कॉर्ड, दैट इज नोन एज इनेमल कॉर्ड। सो द सेल इन द सेंटर ऑफ इनेमल ऑर्गन densely packed form the enamel knot, and the vertical extension of enamel knot is known as enamel cord. When the enamel cord extend to meet, इसका वर्टिकल एक्सटेंशन होते होते जब ये आउटर इनेमल एपिथेलियम को मीट कर जाता है तो ऐसा लगता है कि ये स्टार शेप जो स्टेलेट रेटिकुलम को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। जब इसका अपन सेक्शन लेते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इनेमल सेप्टम। सो व्हेन इनेमल कॉर्ड एक्सटेंड टू मीट आउटर इनेमल एपिथेलियम देन दैट इज नोन एज इनेमल सेप्टम। असल में ये कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है, इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी और ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर कि यहाँ पे डेंसली पैक्ड को इनेमल नॉट कहते हैं, इसके वर्टिकल एक्सटेंशन को इनेमल कॉर्ड कहते हैं, और जब ये बाहर वाले आउटर इनेमल एपिथेलियम को मीट कर जाता है तो ये इनेमल कॉर्ड ही, बट मीट कर जाता है तो वो सेपरेट कर रहा है दो में, इसलिए उसको फिर इनेमल सेप्टम बोल दिया जाता है। जब यहाँ पे ये आके मीट कर रहा है तो यहाँ पे एक डिप्रेशन पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये डिप्रेशन पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर को इनेमल नेवल कहते हैं। वो पॉइंट जहाँ पे इनेमल कॉर्ड आउटर इनेमल एपिथेलियम से जाके मिलता है उस पॉइंट को इनेमल नेवल कहते हैं। तो आउटर इनेमल एपिथेलियम एट पॉइंट ऑफ मीटिंग सो स्मॉल डिप्रेशन एंड दिस डिप्रेशन इज नोन एज इनेमल नेवल। तो ये ऑप्शंस, ये लैंग्वेज देके भी पूछ लेते हैं कि ये ऑप्शन क्या है। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन इसके अंदर डायग्राम देके क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अगर डेंसली पैक्ड को किया है तो इनेमल नॉट होगा, वर्टिकल एक्सटेंशन को किया है इनेमल कॉर्ड होगा, और डिप्रेशन को किया है तो वो इनेमल नेवल होगा। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो कि होता है, इनेमल फॉर्मेशन जब बिगिन होता है उससे पहले डिसअपियर भी हो जाता है। इनेमल फॉर्मेशन बिगिन कब होता है, बेल स्टेज के अंदर, तो बेल स्टेज से पहले डिसअपियर भी होता है, तो इट इज सीन ओनली इन दी कैप स्टेज, कैप स्टेज में ही देखने को मिलता है। इनेमल नॉट और इनेमल कॉर्ड का क्या फंक्शन होता है, इट एक्ट एज द रिजर्वायर ऑफ डिवाइडिंग सेल फॉर ग्रोइंग इनेमल ऑर्गन। इनेमल ऑर्गन अगर ग्रो कर रहा है तो उसको डिवाइडिंग सेल्स चाहिए होंगे, तो ये डिवाइडिंग सेल्स के रिजर्वायर की तरफ कौन एक्ट करता है, इनेमल नॉट एंड इनेमल कॉर्ड। और अगर इनेमल नॉट के बारे में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिग्नलिंग सेंटर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कैप स्टेज में इनेमल ऑर्गन को ग्रो करने का सिग्नल प्रोवाइड करता है। Hence, it is also known as signaling center
as many important factors are expressed by this cell, and also it play an important role in the shape of the tooth, determining the shape of the tooth. टूथ का शेप कैसा होगा, जैसे इंसाइजर का शेप, कैनाइन का शेप, मोलर का शेप, वो कैसा होगा, उस शेप को डिटरमाइन करने में जो सेल हेल्प करते हो इनेमल नॉट हो गया. तो इनेमल नॉट इज द टेम्परेरी स्ट्रक्चर. इट इज द सेल इन द सेंटर which are densely packed. It acts as the reservoir of the dividing cell for growing enamel organ. It acts as the signaling center as it consists of many important growth factors, and also it helps in determining the shape of the tooth. This is about the transitory structure. Now dental papilla. Dental papilla जो यहाँ पे present है, ये और densely packed हो जाता है, और ये इससे तो ये एक्टोडर्म से इनेमल ऑर्गन बना. अपन ने क्या देखा, एक्टोडर्म से इनेमल ऑर्गन बना, इनेमल ऑर्गन से इनेमल बना. एक्टोमेसेनकाइम से दो चीज़ें बनी, डेंटल पैपिला और डेंटल सेक. डेंटल पैपिला से अपने डेंटी और पल्प, और डेंटल सेक से अपने क्या हो जाएगा, पीडियल और सीमेंटम. ओके, नाउ सी कि ये जो डेंटल पैपिला है, इसके अंदर अपन ने देखा कि ये डेंटिंग और पल्प को गिव राइज करते हैं. इसमें बर्डिंग ऑफ कैपिलरीज एंड माइक्रोटिक फिगर. तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि बर्डिंग ऑफ कैपिलरीज इन दी डेंटल पैपिला सीन इन दी कैप स्टेज. तो यहाँ पे कैपिलरीज की बर्डिंग होगी. जस्ट वन लेयर एडजेसेंट टू द इनर इनेमल एपिथेलियम ऑफ द डेंटल पैपिला shows दी हाई माइक्रोटिक फिगर. यहाँ के सेल थोड़े ज़्यादा डिवाइड होते हैं और फ्यूचर में जाके क्या बनाते हैं, ओडोंटोब्लास्ट, एंड ओडोंटोब्लास्ट गिव राइज टू डेंटिंग इन बेल स्टेज. बट अभी यहाँ पे केवल कैपिलरीज की बर्डिंग होगी, क्योंकि ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, और माइक्रोटिक फिगर हो रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है. फिर जैसे ही अभी तो इसमें बर्डिंग ऑफ कैपिलरी इनेमल ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा है, जब ये ओडोंटोब्लास्टिक लेयर बन जाएगी और डेंटल पैपिला इनेमल ऑर्गन से सेपरेट हो जाएगा, तब इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा, डेंटल सेक. फिर डेंटल सेक इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये और इन्वेजिनेशन होगा तो आगे जाके ये एकदम ऐसे बेल स्टेज के अंदर बना रहेगा. अभी तक अपन ने पढ़ा कि बर्ड स्टेज में केवल 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं, पॉलीगॉन, पेरिफेरल सेल एंड सेंट्रल सेल. कैप स्टेज के अंदर 3 हो गए, आउटर इनेमल एपिथेलियम, स्टेलेट रेटिकुलम और इनर इनेमल एपिथेलियम. बेल स्टेज के अंदर 4 तरह के सेल होते हैं. आउटर इनेमल एपिथेलियम तो होता ही है, इनर इनेमल एपिथेलियम भी होता है, स्टेलेट रेटिकुलम भी होता है. इसके बीच में स्ट्रेटम इंटरमीडियम सेल भी आ जाते हैं. फोर्थ स्टेज स्ट्रेटम इंटरमीडियम होता है, and the point where outer enamel epithelium and inner enamel epithelium meet are known as cervical loop, which we will discuss in further slide. तो कैप स्टेज के बाद we come to the third stage of the tooth development, that is the bell stage. बेल स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो इनेमल ऑर्गन होता है उसका एक बेल की तरफ शेप हो जाता है, और भी ऐसे डीप इन्वेजिनेशन हो जाता है. यहाँ पे जो दिस सेल्स आर नोन एज द इनर इनेमल epithelium. These are the long tall columnar, and it exists with short cuboidal, that is the outer enamel epithelium. In between this, there is the stellate reticulum was present, and stratum intermedium is present just adjacent to the inner enamel epithelium. Cell of inner enamel epithelium is attached to the stratum intermedium by the desmosome. ये दोनों आपस में एक डेस्मोसोम्स के द्वारा अटैच्ड होता है. ओके, इनर एनामल एपिथेलियम इज द सिंगल लेयर ऑफ द सेल डिफरेंशिएट प्रायर टू एमिलोजेनेसिस इनटू द टॉल कॉलमनर सेल, एंड दिस टॉल कॉलमनर सेल इज नोन एज अमीलोब्लास्ट. इनेमल फॉर्मिंग cells are ameloblast. Diameter of this is this tall columnar cell. Diameter of this is 4 to 5 micrometer and the height is 40 micrometer. These cells are attached to stratum intermedium by the desmosome. Well developed cytoplasmic organelle, acid mucopolysaccharides.
acid mucopolysaccharides. The question has been asked, what is present alkaline polysaccharide, acid mucopolysaccharide in this acid mucopolysaccharide is present in enamel epithelium and stratum internum. Glycogen, 3 cytoplasmic organelle, acid mucopolysaccharide and the glycogen deposit are present in which indicate the high degree of metabolic activity. कोई सेल डिवाइड हो रहा है तो उसको न्यूट्रिशंस भी चाहिए होंगे, उसके अंदर ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होनी चाहिए, तो ये तीनों इसके अंदर प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट थर्ड लेयर इज स्टेलेट रेटिकुलम. स्टेलेट रेटिकुलम अपन ने देखा था कि स्टार शेप की होती है, ये और ज़्यादा एक्सपांड हो जाती है बट इनके बीच में अटैचमेंट प्रेजेंट होता है. एक्सपांड फर्दर एज द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. स्टार शेप विद लॉन्ग प्रोसेस. लॉन्ग प्रोसेस मतलब एक यहाँ दूसरा है, तो द प्रोसेस बिटवीन दीज टू सेल इज long, but before enamel formation these stellate reticulum collapse, reducing the distance between centrally situated ameloblast and the nutrient capillary near outer enamel epithelium होते हैं लो क्यूबॉइडल सेल की. तो enamel formation होने से पहले ये एक फोल्ड्स के अंदर आ जाती है, सो दैट डेंटल सेक के कुछ यहाँ पे कैपिलरीज आ जाए और एक्यूमुलेट होके इसको इनेमल ऑर्गन को, जो एवास्कुलर इनेमल ऑर्गन है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके. क्योंकि जैसे ही डेंटिंग फॉर्म हो जाता है इनर इनेमल एपिथेलियम को, डेंटल पेपिला से तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, तो कहाँ से मिलता है फिर उसके बाद में डेंटल सेक से. ओके, आउटर इनेमल एपिथेलियम इज लो क्यूबॉइडल फॉर्म एट द एंड ऑफ द बेल स्टेज. हाँ, बट स्टेलेट रेटिकुलम का क्या होता है? स्टेलेट रेटिकुलम सेल जो एक्सपांड हो गए थे और इसके बीच में कनेक्शन बन गया था, उसके केस में क्या होता है कि ये भी धीरे धीरे कोलैप्स हो जाते हैं, सो दैट इसके अंदर भी डिस्टेंस जो कि होता है वो कम हो जाए और आउटर इनेमल एपिथेलियम भी फोल्ड्स में हो जाता है. तो दो चीज़ें हो जाती है, स्टेलेट रेटिकुलम का भी कोलैप्स हो जाते हैं और आउटर इनेमल एपिथेलियम भी जो कि होता है वो फोल्ड्स के अंदर आ जाते हैं. सो लो क्यूबॉइडल फॉर्म होता है एट द एंड ऑफ बेल स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इनेमल. आउटर इनेमल एपिथेलियम लेट्स इनटू द फोल्ड. बिटवीन दिस फोल्ड कैपिलरी लूप्स rich nutrient supply for the intense metabolic activity of avascular enamel organ. अब क्या होगा कि जैसे ही एक डेंटिन की लेयर बनने से पहले जो यहाँ की ओडोंटोब्लास्टिक सेल है और यहाँ की अमीलोब्लास्टिक सेल है, इसके बीच की जो लेयर के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, दैट इज नोन एज मेम्ब्रेना प्रीफॉर्मेटिवा, मेम्ब्रेना प्रीफॉर्मेटिवा. तो इट इज़ द लेयर, जैसे कि इनर इनेमल एपिथेलियम की लेयर है और यहाँ पे एक ओडोंटोब्लास्टिक की लेयर है. तो इन ओडोंटोब्लास्टिक लेयर और इसके बीच में एक मेम्ब्रेना प्रीफॉर्मेटिवा प्रेजेंट होती है लेयर. क्योंकि क्या होता है कि हमेशा इनेमल बनने से पहले डेंटिन फॉर्मेशन होता है. एक बार एक डेंटिन की लेयर बन जाती है उसके बाद में इनेमल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. कैसे स्टार्ट होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, कैसे यहाँ पे हर्ट्स बनते हैं जिससे आगे जाके रूट्स बनती है, वी विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स.